Aam Aadmi Party leaders and workers have held a protest against the BJP in the national capital today. This comes as Vibhav Kumar has been sent to 5 days of police custody in connection with the alleged assault on Swati Maliwal after a late-night court hearing. Delhi CM and AAP National Convener Arvind Kejriwal along with Atishi, Gopal Rai, Raghav Chadha are present in the protest. Meanwhile, security has been beefed up around the BJP headquarters. Reactions are pouring in on this big story. Let's quickly play them out. पार्टी के जो नेता भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं उनको जेल भेजने का निर्णय माननीय न्यायालय का है। एक बात अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट रूप से पता है, इसलिए वो बार बार न्यायालय की शरण में जाते हैं। और जहां तक उनके भ्रष्टाचार की कहानी है, शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, स्कूल में कमरों का घोटाला हो, नकली दवाइयों का घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, राशन वितरण प्रणाली का घोटाला हो, ये ऐसी लंबी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल की चोरी की, मक्कारी की, लूट की, जो दिल्ली की जनता समझ रही है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए और उसके बाद जिस तरह के व्यवहार उन्होंने मातृशक्ति के साथ किया, स्वाति मालीवाल के साथ किया, अपने घर में बुला के एक महिला सांसद की पिटाई करवाई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब देने के लिए कोई है नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, आप स्वाति मालीवाल पे चुप क्यों हैं? आप कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी आप बोल रहे हैं। एक शब्द उस बहन के बारे में बोलिए जिसके साथ आप 20 साल से लगातार काम कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल के काम से डर लगता है। वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते, वो फ्री बिजली नहीं दे पाते, वो बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाते, वो मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज नहीं दे पाते। इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। क्या आगे जैसे कहा गया वहाँ पे संजय सिंह ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पता चल गया तो आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे आगामी दिनों में? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी संघर्ष करती आई है, संघर्ष करती रहेगी। Shubh Rana is joining us for more details on this story. Shubh, the Aam Aadmi Party holding a protest in the national capital. However, their march to the BJP headquarters was stopped by the Delhi police. Definitely, this big protest have been carried out by Aam Aadmi Party, where they have given 40 minutes to Bharatiya Janata Party, and Arvind Kejriwal has clearly mentioned that if you really want to arrest all of us, then we are coming straight to Bharatiya Janata Party, then do arrest all of us. This is what has been quoted by Arvind Kejriwal. And you know, Arvind Kejriwal was seated behind the barricade with all his ministers, whether we talk about Atishi, Saurabh Bhardwaj, Gopal Rai, or Raghav Chadha, who is the most talked about minister, because you know, Raghav Chadha was not there since a long time. It was more than 6 months. But now Raghav Chadha is back to Aam Aadmi Party, and Arvind Kejriwal has been constantly saying in one voice that now the next number who is in queue to go to Tihar is Raghav Chadha. This is what the speculations are raised by the Chief Minister Arvind Kejriwal, where he has been saying. And now when he has given 30 minutes to Bharatiya Janata Party, after 30 minutes, after the time is over, he was back to Aam Aadmi Party Karyalay, and then he headed straight to his house. Yes, back to you. Shubhendu Shekhar Awasthi, BJP leader, is also joining us now live. Shubhendu, the Aam Aadmi Party stopped from their protest march today to the BJP headquarters, to your party head office in Delhi by the Delhi police. They are claiming that they are challenging you to arrest their leaders because that is what you are intending to do. देखिए, इस तरीके का कोई बात जो लोग कर रहे हैं कि अराजकता की तरह बात कर रहे हैं, परमिशन है नहीं, धारा 144 लगी हुई है, उसके बाद कह रहे हैं हमको पकड़ लो, और जब हम पकड़ लेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमको गलत पकड़ लिया है। पूरे दिल्ली के अंदर एक अराजक इन्वायरमेंट डेवलप किया हुआ है, और ऐसे कंडीशन में मेरे को लगता है कि आप केजरीवाल जी को रिजाइन कर देना चाहिए। कुछ मुद्दे बचे नहीं है, केवल आक्रोश और आक्रोश और अराजकता। आंदोलन से जन्म होने का पार्टी का ये मतलब नहीं होता कि जब चाहो जैसा चाहो वैसा करो। आज कोर्ट ने भी ये बात कही है, और ये बात डिस्कशन में भी आई है कि यदि आप हमको वोट दोगे, हमको जिताओगे, तो हम जेल नहीं जाएंगे। अरे जनाब, आप जेल जरूर जाओगे, ये बात पक्की है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मेरे को लगता है
कि ये जो पुलिस और प्रशासन को एक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और खासकर आज मैं और एक बड़ी बात कहता हूं कि इसके ऊपर इमीडिएटली राष्ट्रपति शासन को भी लगाना चाहिए, जिस तरीके का ये इन्वायरमेंट डेवलप कर रहे हैं। जी, शुभेंदु शेखर जी, ये जो आरोप हैं जो आपकी पार्टी पे लग रहे हैं, इनका क्या आप जवाब देंगे? अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, ये ऑपरेशन झाड़ू है जो बीजेपी करवा रही है। वो ये भी कह रहे हैं विभव को भी इसके तहत ही गिरफ्तार किया। स्वाति मालीवाल उनकी एक सांसद हैं और वुमेन बिल कहते हैं उनके जो सेल है उसकी चेयरपर्सन रही हैं, और वो यदि कह रही हैं कि उनको बुरी तरीके से मारा गया है तो जांच हो रही है, पर जवाब तो देना पड़ेगा। और ऐसी रिपोर्ट कोई भी महिला के लिए होती है तो पुलिस गिरफ्तार करती है। उनको एक भी रिपोर्ट के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है, बयान लिया जा रहा है। और मेरे को लगता है कि आज ये झगड़ा अंदरूनी है। कोई लोग कहते हैं पति पत्नी और वो झगड़ा हो सकता है क्या? या यहाँ पर आप सोचिए केजरीवाल जी के रहते हुए सीएम रेजिडेंस के अंदर इस तरीके का झगड़ा हुआ है, तो मेरे को लगता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं। आप ऋचा पांडे जी का सुनिए, आप साजिया एलमी जी का देखिए, किरण बेदी जी का देखिए, कितनी महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है और उन्होंने पार्टियों को छोड़ा है, आम आदमी पार्टी को। इसलिए आम आदमी पार्टी अब अराजक पार्टी हो गई है और इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। और केजरीवाल जी का जो ये अब एक तरीके का, आप ये सोचिए कि वो सब होश हो चुके हैं। और कोई आज कह भी रहा था कि अब वो 2 तारीख को जेल चले जाएंगे, तो वहां पीए की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ऐसा करवाया है। बने रहिए शुभेंदु शेखर जी। Budev Sharma, leader of the Congress, is also joining us now. Budev Sharma, you're hearing what Shubhendu Shekhar is saying. He's saying that these are allegations of Swati Maliwal. She is an MP of their party. Why blame the BJP for this? He's also saying that the AAP is staring defeat in the face. जी सर, देखिए बिल्कुल मैं तो इसमें सिर्फ यही कहना चाहेंगे, क्योंकि आज देश की जनता भी ये जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। अच्छी बात है, कहीं पर भी महिलाओं के साथ कुछ भी होता है प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन दुख तो इस बात का होता है और देश की जनता भी ये पूछना चाहती है कि जब महिलाओं के साथ मणिपुर में अगर इस तरह का अन्याय होता है तब ये कहाँ रहते हैं? यूपी के अंदर जिस तरह का अन्याय होता है तब ये बीजेपी के नेता, ये हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष उस समय क्यों नहीं बोलती हैं? लेकिन आज ये किसी से छुपा नहीं है कि विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अगर कुछ भी अगर हुआ है तो उसकी पुलिस जांच करे, उसकी जांच करवाइए। जब ये सब क्लियर हो जाएगा तो फिर जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन किस तरह विपक्ष को बदनाम किया जाए, किस तरह चुनावों के बीच में इस तरह के मुद्दे उठाए जाएं जिससे देश की जनता जो मेन मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, इनसे भटकने का काम करे, उनको भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इसका कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही करती आई है और यही कर रही है। धन्यवाद। अवस्थी जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, झगड़ा आम आदमी पार्टी के बीच में, आम आदमी पार्टी की सांसद गई केजरीवाल जी के यहाँ मिलने के लिए, वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, और जो जहां उनका रेजिडेंस है वो भी आम आदमी पार्टी का है। शिकायत किसने करी? आम आदमी पार्टी की सांसद ने। उनके बचाव में पीसी किसने करी? संजय सिंह जी ने, आम आदमी पार्टी के। और उन्होंने कहा कि वैभव कुमार के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होगा और बहुत गलत हुआ है। तो संजय सिंह क्या झूठ बोल रहे थे? और अगले दिन जब आतिशी ने कहा कि ये झूठ बोल रही हैं, तो क्या आतिशी झूठ बोल रही हैं? मेरा ऐसा मानना है कि ये इनके घर के अंदर का झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तो एक तरीके की जो झगड़ा हुआ है उसमें उनके साथ है। जहां तक कि मणिपुर की बात कर रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत बड़े बयान दिए हैं पार्लियामेंट उसके ऊपर भी। और ये तो झगड़ा कांग्रेस के लोग बता रहे हैं। अभी तक पिछले 10 सालों में जब इनकी सरकार थी तो 37 टाइम इस तरीके के झगड़े हुए हैं। पर संदेश खाली के ऊपर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का एक ट्वीट भी नहीं आता है। तो क्या महिला खाली मणिपुर की है? महिला तो पूरे देश की होगी। महिला एक होती है। इस तरीके से पर्सनलाइज होके कि यदि ममता बनर्जी जी के यहाँ पे कोई महिलाओं पे अत्याचार हो रहा हो या आम आदमी पार्टी के
सरकार के द्वारा, उनके चीफ मिनिस्टर के द्वारा महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो तो फिर कांग्रेस वाले ट्वीट भी नहीं करते हैं। तो इनको तो महिलाओं में फर्क है, क्योंकि इनकी पार्टी का गठबंधन है तो वहां नहीं बोलेंगे। मणिपुर से अभी निकले नहीं है, और सुनिए 4 तारीख के बाद जब 400 पार आएगी तब आपको समझ में आएगा। इस तरीके का जो आप व्यवहार कर रहे हैं, आपकी हताशा की स्थिति है, कांग्रेस की भी और आम आदमी पार्टी की भी। धन्यवाद। जी बिल्कुल। भूदेव शर्मा, क्योंकि बड़ा सवाल ये है अब कि इस सब का क्या असर पड़ेगा दिल्ली के मतदाताओं पर। अब कुछ ही दिन बच गए हैं, दिल्ली की वोटिंग जो है 25 तारीख को होगी, तब हिसाब किया जाएगा। वोटर्स ये सब देख रहे हैं। भूदेव शर्मा, प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि किसी मुद्दे पर नहीं बोलते। मुझे लगता है कि ये बिना किसी को सुने, बिना किसी को समझे और इस तरह के जब जवाब देते हैं। इनको ये नहीं पता कि प्रियंका जी ने कहा था कि वो हर महिला के साथ खड़ी हैं। अगर वहाँ कुछ भी गलत हुआ है तो स्वाति माल जी के साथ खड़ी हैं। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.